سہون میں خاتون ٹیچر کا مبینہ قتل، ورثاء نے قتل کو خودکشی قرار دے دیا ہے۔ نوین فاطمہ کی لاش گھر سے برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق نوین فاطمہ کو قاری قرار دے کر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے۔ نوین فاطمہ کچھ عرصے قبل ٹیسٹ پاس کر کے پرائمری ٹیچر بھرتی ہوئی تھی۔ افسوسناک خبر ہے، سہون سے خاتون ٹیچر کا مبینہ قتل ہوا، جس پر اس کی موت کو ورثاء نے خودکشی قرار دے دیا۔ پولیس کا یہ بتانا ہے کہ نوین فاطمہ کی لاش گھر سے برآمد ہوئی ہے۔ نوین فاطمہ کو قاری قرار دیا گیا تھا، اس کے بعد فائرنگ کر کے اس کا قتل کر دیا گیا، لیکن اہل خانہ اس قتل کو خودکشی قرار دے رہے ہیں۔ پولیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ نوین فاطمہ کچھ عرصے قبل ٹیسٹ پاس کر کے پرائمری ٹیچر بھرتی ہوئی تھی۔ کرتے ہیں کراچی کے کورنگی نمبر 4 کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر شہری کے قتل کا یہ معاملہ ہے۔ واقعے کا عینی شاہد رمضان کا بیان سامنے آ گیا۔ 4 ملزمان نے موبائل فون چھیننے کے دوران فائرنگ کی تھی۔ عینی شاہد کے مطابق مقتول صفدر حسین کے بیٹے کو بھی 6 روز قبل ڈکیتی مزاحمت پر اسی جگہ قتل کیا گیا تھا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے شہباز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہباز، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، یہ کراچی کا علاقہ ہے کورنگی نمبر 4، جہاں پر ڈکیتی مزاحمت کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہری صفدر حسین جاں بحق ہو گیا تھا۔ واقعے کے جو عینی شاہد ہے رمضان، اس کا بیان سامنے آیا ہے، جس کے مطابق اس کا کہنا ہے کہ وہ اور صفدر حسین امام باقر کے قریب بیٹھے تھے، تو اسی دوران لائٹ چلی گئی، سامنے سے 2 ڈاکو آئے اور انہوں نے پسٹل لوڈ کیا اور موبائل فون مانگا، جس پر صفدر حسین نے جو ہے اپنا موبائل فون نہیں دیا۔ ڈاکوؤں کی جانب سے صفدر حسین کے پیر پہ جو ہے گولی ماری گئی، جس سے موبائل فون کے ہاتھ سے گرا ہے، تو ڈاکوؤں نے دوسری گولی چلائی ہے جو کہ دوسرے پاؤں میں لگی، جس کی وجہ سے صفدر حسین گر گئے، اور اس کے بعد ڈاکوؤں نے ان کی آنکھ پر جو ہے وہ گولی ماری، جو کہ جان لیوا ثابت ہوئی۔ تاہم عینی شاہد نے یہ بھی بتایا کہ ملزمان نے جو لوگ تھے صفدر حسین سمیت 4 افراد کے موبائل فون لوٹے اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ مقتول صفدر حسین کے بیٹے اظہر کو بھی 6 روز قبل کورنگی نمبر 4 اور اسی مقام پر جو ہے ڈکیتی مزاحمت کے دوران فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ تاہم پولیس کا یہ بھی بتانا ہے کہ اظہر حسین کے قتل میں ملوث 1 ڈاکو پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا، جبکہ 2 کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے حوالے سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں، چاہے وہ قوت سے شواہد بھی اکٹھے کی جا رہے ہیں، CCTV فوٹیج بھی کلیکٹ کی جا رہی ہے چاہے وہ قوت کے اطراف میں، تو جس کے بعد ملزمان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ جی شکریہ آپ کا شہباز۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 9 مئی ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ افسوسناک واقعات کے باعث ہمارے سر شرم سے جھکائے۔ بلوائیوں کو اکسانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ میں بھی کہوں کہ ذمہ داروں کو نہ چھوڑا جائے۔ وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا اس ملک کے اندر، وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن سے یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان کے ازلی دشمن نے 75 سال میں وہ ایسے گھنونے کام کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوا جو کہ یہ جتھا کامیاب ہو گیا۔ بلوائیوں کو اکسایا، ان کو لیڈ کیا، اپنے سامنے یہ توڑ پھوڑ اور گھروں کو آگ لگائی، اور دوسرے جو بڑے پرانے ریلکس ہیں ان کو اٹھا کر زمین پر پھینکا، ان کو توڑا، اور شہیدوں اور غازیوں کی بے حرمتی کی۔ وہ کسی رعایت کے وہ قابل نہیں ہیں۔ ان کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا، اور اگر وزیر اعظم بھی کہے کہ اس فلاں کو چھوڑ دو تو وزیر اعظم کا حکم ماننے سے انکار کر دو۔ 72 گھنٹے کی میں نے ان کو باقاعدہ ایک ٹائم لمٹ دی کہ اس کے اندر آپ سب کو گرفتار کر کے ان کے مقدمات درج کرائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ ملک میں تشدد اور شرپسندی کسی صورت برداشت نہ کرتے ہوئے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ 9 مئی کو قومی سطح پر یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے جاوید حسین کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سول اور عسکری قیادت کی اہم بیٹھک۔ ملک کی سیاسی و معاشی صورتحال پر مشاورت، اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔
वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ, सलामती से मुतल्लिक इदारों के सरबराहों और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी इलामिये के मुताबिक इजलास ने आदा किया कि मुल्क में तशद्दुद और शरपसंदी किसी सूरत बर्दाश्त न करते हुए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। इजलास ने 9 मई को कौमी सतह पर यौम सियाह के तौर पर मनाने का ऐलान किया। कौमी सलामती कमेटी के शुरकान ने मुसल्लह अफवाज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। शुरकान ने ज़ाती मफादात और सियासी फायदे के लिए जलाओ गिराव और फौजी तनसीबात पर हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। शुरकान ने इस अज़म का इयादा किया कि फौजी तनसीबात और अवामी इमलाक की खुरमत व वकार की खिलाफ वर्जी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 9 मई के सानिये में मुलविस तमाम अनासर को इंसाफ के कटेरे में लाया जाएगा। इजलास ने आइन के मुताबिक मुतल्लिका कवानीन बशमूल आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के जरिए शरपसंदों, उकसाने वालों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके इंसाफ के कटेरे में लाने के फैसले की भी तायीद की। फोरम ने वाज़ेह किया कि किसी भी एजेंडे के तहत फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरतेंगे। इजलास के शुरकान ने सोशल मीडिया के कवायद व ज़वाबित के सख्ती से नफाज को यकीनी बनाने की हिदायत की ताकि बैरूनी सरपरस्ती और दाखिली सहूलतकारी से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे का तदारक किया जा सके और इसका इर्तिकाब करने वाले अनासर को कानून के कटहरे में लाया जा सके। इजलास ने आलमी सियासी कशमकश और दुश्मन कुव्वतों की वजह से बढ़ते हुए पेचीदा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में कौमी इत्तेहाद और यगानगत पर जोर दिया। फोरम ने सियासी इख्तिलाफात को महाजा राई के बजाय जमहूरी इक़दार के मुताबिक मुज़ाकरात के जरिए हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे। हर शख्स रंजीदा है। शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और मुलव्वस अफराद का ताल्लुक खा PTI से हो, करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मेरा ताल्लुक़ ज़िला झेलम से है। हमारा जो तमाम इलाका है, तमाम जो ज़िला है, ये शहीदों का और गाजियों का मस्कन है। हमारा तो कोई कब्रिस्तान ही नहीं है जहाँ पे कोई शहीद दफन नहीं है। 9 मई को जो वाक़यात पेश आए, जिस तरह से कोर कमांडर लाहौर के घर के ऊपर जो वाक़या पेश आया, जो GHQ में मामला पेश आया, हर वो शख्स जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की फ़ौज से है, ज़ाहिर है कि वो इस पर रंजीदा है और उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से ये समझता हूँ कि ये वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे और ये कभी भी नहीं होने चाहिए। और इसके ऊपर जो तहकीकात हों और तहकीकात में जो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो PTI के हैं चाहे PTI के नहीं हैं, वो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक़ है और जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है वो ये समझता है कि पाकिस्तान की फ़ौज से उसका ताल्लुक़ है, क्योंकि फ़ौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। लिहाजा इसी नुक्ता नज़र और इसके मद्देनज़र जो है वो हमें अपनी पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए। इसके मुताबिक ही हमने इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ना है। पुलिस ने अगर गिरफ़्तार करना हुआ तो यहाँ पे हमें बाकी देखना। आर्मी तनसीबात और इमलाक पर शरपसंदों का हमला आवरों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला हुआ है। निगरान पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। तफसील के लिए रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सरबराही में अहम इजलास। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और 9 मई की दहशत गर्दी के वाक़यात के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। आर्मी तनसीबात और इमलाक पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की मंजूरी दी। शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात के लिए GIT तश्कील देने की असूली मंजूरी इजलास में मोहसिन नकवी ने मुलजिमों, सहूलतकारों और मास्टर माइंड तक पहुँचने के लिए मौसर मैकेनिज्म वाज़े करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि 32 मुकामात की जियो फेंसिंग करके मुल्जिमान को ट्रेस किया जा रहा है। तस्वीर और वीडियोस में चेहरे से शनाख्त के लिए नादरा के डेटाबेस से मदद ली जा रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा, तमाम शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को पेशावराना तरीके से आगे बढ़ाया जाए। इंसदाद दहशत गर्दी लाहौर की खुसूसी अदालत में ज़मान पाक जलाओ घिराव केस की समाअत हुई। अदालत ने इमरान खान की अबूरी ज़मानत में 19 मई तक की तौसीक़ कर दी है। फवाद चौधरी, हमाद अजहर समेत 6 तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अबूरी ज़मानतों की दरख्वास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक।
इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के जज इजाज अहमद बुटर ने चेयरमैन PTI इमरान खान, इजाज चौधरी, फरख हबीब, फवाद चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर अयूब की अबूरी जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत की। कोई भी मुल्जिम अदालत के रूबरू पेश न हुआ। अदालती इस्तफसार पर इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की खराब सूरत हाल और जान को खतरे के बायस इमरान खान अदालत पेश नहीं होंगे। अदालत हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर करे। अदालत ने वकला को बावर करवाया कि अगर जमानतें चाहते हैं तो अपने अपने मुल्जिमान को अदालतों में पेश करें। मियां महमूद रशीद और उमर अयूब की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त को मंजूर नहीं किया। अदालती मोहलत के बावजूद मुल्जिमान के पेश न होने पर अदालत ने फवाद चौधरी समेत 6 PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों की दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालती हुक्म के बाद PTI रहनुमा उमर अयूब के वकील अदालत पेश हुए और बताया कि दरख्वास्त गुजार की इस्लामाबाद की दहशत गर्दी अदालत में पेशी है। अदालत हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर करे, जिस पर जज इजाज अहमद बुटर ने वाजे किया कि अदालती हुक्म जारी हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। PTI रहनुमाओं के खिलाफ लाहौर पुलिस ने जलाओ घेराव और कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने कोल कमांडर हाउस में जलाओ घेराव और इमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद का 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने मियां महमूद रशीद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मियां महमूद रशीद से तफ्तीश और बरामदगी करनी है। दूसरी जानिब डॉक्टर यास्मिन राशिद के खिलाफ जलाओ घेराव के मुकदमे में अदालत ने MS सर्विसेज अस्पताल को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। अदालत ने MS सर्विसेज अस्पताल को डॉक्टर यास्मिन राशिद का फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर पेश होने की हिदायत करते हुए कार्रवाई 18 मई तक मुलतवी कर दी। उधर कराची में 9 मई के रोज़ हंगामा आराई और जलाओ घेराव में मुलव्वस अफराद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। किमाड़ी पुलिस ने रेड बस जलाने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल नसीर। शहर कायद में जलाओ घेराव करने वाले शरपसंदों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी। गुज़िश्ता रोज किमाड़ी पुलिस के हाथों गिरफ्तार 2 मुल्जिमान ने हंगामा आराई और रेड बस जलाने का इतराफ कर लिया। पार्टी रहनुमा के बयान के बाद पीपल्स रेड बस को आग लगाई और तोड़ फोड़ की। रिवादिल शेख का वीडियो बयान सुना जिसपे उन्होंने कहा कराची बंद करो, तो उसमें मैं इश्तियाल में आया और उसके बाद मैं शारा फैसल पे गया, वहाँ पे तोड़ फोड़ की और पीपल बस को आग लगाई। मैं लीडरों के वरगलाने में आया, तो मैं इस पे बेहद शर्मिंदा हूँ। गिरफ्तार मुल्जिमान को इंटेलिजेंस और टेक्निकल जराये की मदद से गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान ने रेड बस को आग लगाई थी। दोनों मुल्जिमान टीपू सुल्तान और फिरोजाबाद थाने में मतलूब थे। मुल्जिमान को ईस्ट पुलिस के हवाले कर दिया गया। फवाद चौधरी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी पर रिहाई के हुक्म के बाद पुलिस की उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश। तहरीक इंसाफ के रहनुमा भागकर वापस अदालत पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। रिहाई के अहकामात के बाद फवाद चौधरी को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से बचने के लिए वापस अदालत की तरफ दौड़। PTI रहनुमा को एक बार फिर रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। हुक्मनामा IG इस्लामाबाद को भी अरसाल करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फवाद चौधरी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त की समाअत की। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के फैसले को कलअदम करार देते हुए 3 MPO के तहत गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने उन्हें 2 रोज तक किसी दीगर केस में गिरफ्तार न करने की हिदायत। फवाद चौधरी रिहाई के बाद रवानगी के लिए गाड़ी में बैठे ही थे कि उनकी नजर दोबारा गिरफ्तारी के लिए अपनी जानिब बढ़ते हुए पुलिस एहलकारों पर पड़ गई। फवाद चौधरी फौरन गाड़ी से निकले और वापस अदालत की तरफ दौड़ लगा दी। रास्ते में 2 पुलिस एहलकार उन्हें पकड़ने को लपके, मगर वो इनसे भी दामन छुड़ाकर भाग निकले। फवाद चौधरी भाग दौड़ की वजह से बेहाल नजर आए। रास्ते में गिरे भी वकला ने उठाया और सहारा देकर अदालत तक पहुंचा दिया। फवाद चौधरी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में रोस्ट्रम पर आकर कहा कि पुलिस उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने के लिए मौजूद थी। इस पर अदालत ने कहा कि आप खुद वकील हैं, आपको चाहिए था अदालत का तहरीरी हुक्म साथ ले जाते। हुक्म के बावजूद गिरफ्तारी के खिलाफ फवाद चौधरी की दरखास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया। बाद अज़ां फैसला सुनाते हुए अदालत ने फवाद चौधरी को किसी और मुकदमे में भी गिरफ्तार न करने की हिदायत करते हुए दीगर 2 मुकदमात में मुतलका अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की 2 मुख्तलिफ मुकदमात में 22 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने शेरी मज़ारी और सेनेटर फलकनाज की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी को कलअदम करार देते हुए रिहाई का हुक्म दिया। ताहम दोनों को अडियाला जेल के बाहर से दोबारा हिरासत में ले लिया गया।
PTI रहनुमाओं का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू, असद कैसर को रिलीफ मिल गया। श्री मजारी और सेनेटर फलक नाज चंद मिनट के लिए रिहाई के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार। असद उमर को फैमिली और वकला से मिलने की इजाजत दे दी गई। ईमान मजारी ने अपने ट्वीट में बताया कि डॉक्टर श्री मजारी और सेनेटर फलक नाज चित्राली को रिहाई के फौरन बाद दोबारा हिरासत में ले लिया गया। PTI रहनुमाओं को अडियाला जेल के बाहर से इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और नामालूम मकाम की तरफ ले गए। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत दोनों खवातीन रहनुमाओं की गिरफ्तारी को कलअदम करार देते हुए फौरी रिहाई का हुक्म दिया था। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि श्री मजारी तो काफी बीमार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने असद कैसर की 2 मुकदमात में बुरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। ताहम दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने 7 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए असद कैसर को मुतलका अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। इस दौरान 3 MPO के तहत भी असद कैसर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। असद उमर की एहलिया भी शोर से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर अदालत आलिया पहुंच गई। जस्टिस गुल हसन की अदालत में दलाइल के दौरान वकील आमना अली एडवोकेट का कहना था कि असद उमर की फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा। फैमिली से मुलाकात उनका आईनी हक है। अदालत ने असद उमर की फैमिली और वकला से मिलने की इजाजत दे दी। अदालत ने असद उमर के मेडिकल चेकअप का हुक्म भी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का सियासी मुखालिफिन पर तंज, कहा कि देखा सुना और पढ़ा तो था कि सियासी लीडर और कारकुन घबराते नहीं हैं, बहादुरी से गिरफ्तारियां पेश करते हैं, हौसले से कैद व बंद का सामना करते हैं। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा, लीडर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करते, नाकाबिल इतलाफी नुकसान बर्दाश्त करते हैं, लेकिन तारीख में पहली मरतबा एक इनकलाबी जमात ऐसी भी आई है जिसने डर के मारे टांग पर पलस्तर चढ़ाने, सर पर बाल्टियां रखने, व्हील चेयर्स पर बैठ जाने, अस्पतालों कोर्ट रूम्स में छुप छुपाने और जूतियां छोड़कर दौड़ने लगाने की नई तारीख रकम की है। अब खबर यह है कि MNA महमूद मौलवी ने PTI और असम्बली रुकनी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि कभी कौमी इदारों के खिलाफ बात की, ना ही आइंदा करेंगे। फौजी तनसीबात और यादगारें जलाने वाले गलत हैं। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ और एज एन MNA सिटिंग MNA हूँ, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। मैं अपने फ़ौज के अगेंस्ट मैं ज़िंदगी में न गया हूँ न जाऊँगा। पॉलिटिकल पार्टीज बदल सकते हैं हम, मगर फ़ौज को हम कभी नहीं बदल सकते। इंडिविजुअल के साथ आपका झगड़ा होता है, 14 के ऊपर जो उनके मॉन्यूमेंट्स थे उसके ऊपर जो हंगामाराई हुई और तोड़ फोड़ हुई, हम क्या कहना चाहते हैं? ये वो काम हुआ है जो कि मैं कहूँगा कि इंडियन का बाप नहीं कर सका। जो लोग भी थे, मैं फिर कहूँगा कि वो गलत थे। या तो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँगा, या हो सकता है मेरी उम्र साथ नहीं दे रही है, वरना एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो है मैं फॉर्म करूँ। हर पार्टी जब उतरी है उन्होंने फौज की बुराई की है। बाकी पार्टी के लोगों से भी कहूँगा कि ये खौफ का बुत तोड़े। खान साहब खुद कहते थे कि जी फौज हमारी बैकबोन है। PTI के जो लोग मुलविस थे उनको सजाएं मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। नहीं, मेरा इशारा खान साहब की तरफ इसलिए नहीं है क्योंकि देखें बहुत सारे लोग समझते हैं कि हर चीज़ खान साहब करते हैं। खान साहब हर चीज़ नहीं करते, ये पूरी पॉलिटिकल पार्टी है। अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी केस नैब ने शहजाद अकबर को भी तलब कर लिया है। शहजाद अकबर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। शहजाद अकबर को 22 मई दिन 11:30 बजे पेश होने का हुक्म दिया गया है। केस से मुतल्लिका दस्तावेज़ात भी हमरा लाने की हिदायत की गई है। आपको क्या कर रहे हैं, अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी केस नैब ने शहजाद अकबर को भी तलब कर लिया है और शहजाद अकबर को तलबी का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 की कसरत राय से मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट किसी कमेटी की तहकीर या रुकन का इस्तेहकाक मजरू करने पर 6 माह कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं भी सुना सकती है। तफसील के लिए रिपोर्ट। कौमी असम्बली में तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 कसरत राय से मंजूर। ऐवान की तौहीन पर किसी भी हुकूमती या रियासती ओहदेदार को तलब किया जा सकेगा। 6 माह कैद, 10 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकेंगी। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत हुआ। राना कासिम नून ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 ऐवान में मंजूरी के लिए पेश किया। राना कासिम नून ने कहा कि तौहीन पार्लियामान का बिल बहुत अहम है। आइंदा किसी ने इस हाउस की तौहीन की तो वो सजा का मुर्तकिब होगा। हम 4 साल से इस बिल पर काम कर रहे थे
वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर ने कहा कि कायमा कमेटी रूल्स में भी तरमीम होनी चाहिए। अरकान पार्लियामेंट के फोन अफसरान सुनना गवारा नहीं करते। हर अदारे की तौहीन का कोई न कोई कानून है। अब हमें पार्लियामेंट की कमेटियों की भी तौहीन कबूल नहीं। तौहीन पार्लियामेंट बिल के तहत पार्लियामेंट या इसकी किसी कमेटी की तहकीर या किसी ऐवान या रुकन का इस्तेहकाक मजरूह करने पर सजा हो सकेगी। 24 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तौहीन पार्लियामेंट केसेस की तहकीकात करेगी। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन से 50-50% अराकीन को शामिल किया जाएगा। कॉन्टेम्प्ट कमेटी शिकायत की रिपोर्ट पर स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को सजा तजवीज़ करेगी। स्पीकर या चेयरमैन सेनेट मुतलका फर्द पर सजा के तयन का ऐलान कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि सानिया 9 मई पर हर आंख हश्कबार है। इसकी मनसूबाबंदी इमरान खान के हुक्म पर हुई। इनकी पूरी सियासत मुल्क दुश्मनी पर मबनी है। आपने 9 मई को जो किया वो किसी दहशत गर्द ने भी नहीं किया। इस फितने और फसाद को ख़त्म होना चाहिए। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। जो 9 मई का सानिया है, जो कौमी सानिया है, मुल्क की तारीख़ में एक ऐसा सानिया जिसके ऊपर हर दिल रो रहा है और हर आंख अश्कबार है। इस पूरे वाक़े की मंसूबा बंदी ज़मान पार्क में इमरान खान के हुक्म पे और इमरान खान के आइडेंटिफाई किए हुए अहदाफ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी तो इसकी कौन मजम्मत करेगा। और ये वो शख्स है जिसकी पूरी सियासत इंतशार, फसाद और मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश और दुश्मनी है। और आपकी जो टाइगर फोर्स जिसको बतौर वज़ीर आज़म आपने बैज लगा कर तैयार किया, वो सब शहीदों की और गाजियों की यादगारों की बेहुरमती कर रहे थे, स्कूल जला रहे थे, तो क्या वो सारे के सारे एजेंसियों के लोग थे? और आज जो 9 मई को आपने किया वो किसी दहशत गर्द ने कभी नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि जिन्होंने कमांडर के घर को नहीं छोड़ा वो पोलिंग स्टेशन को क्या समझेंगे। इनके मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत नहीं चलेंगे तो किसके चलेंगे। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इतने बड़े हमलावर जिन्होंने कोर कमांडर हाउस नहीं छोड़ा, अगर इलेक्शन हो इस हालत में तो चीफ कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमीशन या बैलेट बॉक्स और बैलेट बक्स कैसे महफूज हो सकते हैं? ये तो उठाकर लेके जाएंगे। इनके मुकदमे भी उन अदालतों में या आर्मी एक्ट के तहत नहीं चलेंगे तो किसके चलेंगे? वो इमरान खान जिसको लोग समझते हैं कि वो ऊपर से उतरा हुआ है। इमरान खान ने एक जो बयानिया बनाया है कि ये सब कुछ एजेंसियों के लोग कर रहे हैं, खान साहब इतना हर वक्त तो आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि इमरान खान ने कभी भी फौज और आवाम में फासला पैदा करने की कोशिश नहीं की। 9 मई के वाक़यात की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर शफाफ इंक्वायरी हुई तो हुकूमत का खुफिया हाथ बेनकाब होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने सवाल उठाया कि कोर कमांडर हाउस पर हमले के वक्त IG और पंजाब पुलिस कहाँ थी। हुकूमत ने जानबूझकर सरकारी और फौजी तनसीबात को बचाने की कोशिश नहीं की। शहबाज शरीफ बदस्तूर आग भड़काने में लगे हुए हैं। PDM ब्लैकमेलिंग से सुप्रीम कोर्ट को इनकी पासदारी से नहीं रोक सकती। मौजूदा हालात का वाहिद हल इलेक्शंस हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमती वकील मखदूम अली खान और इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस को दलाइल की समरी जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जवाबात के बाद फैसला करेंगे कि इसकी मजीद समाअत की ज़रूरत है या नहीं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ केस की समाअत, हुकूमत और इमरान खान के वकला को दलाइल की समरी जमा करवाने का हुक्म, मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुल्तवी। 3 रुकनी बेंच में समाअत के मौके पर वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने कहा, कल हालात ऐसे थे कि यकीन नहीं था कि अदालत पहुँच सकूंगा। आजकल तो सोशल मीडिया भी नहीं चल रहा कि मालूमात मिल सकें। चीफ जस्टिस ने कहा, फरीकैन मवाद जमा कराएं। अगर फराहम करदा मवाद पर अदालत किसी नतीजे पर पहुँची तो आगाह कर देंगे। मुकदमे को मजीद नहीं लटकाना चाहते क्योंकि अदालती छुट्टियों में शायद बेंच बैक वक्त दस्तयाब न हो। नैब कानून में बहुत सी चीजें दुरुस्त हैं, कुछ गलतियां हैं जिन पर फैसला देंगे। वकील इमरान खान ने कहा, हुकूमत ने नैब कानून में कल 30वीं तरमीम की। रेफरेंसेस वापस होने पर मुतल्लिका फोरम से रिजू करने के मामले पर तरमीम की गई है। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत भी तो हमारा इम्तहान लेती जा रही है। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा, पिछले हफ्ते आईनी तारीख में पहली बार एक ऐसे शख्स ने इस कानून से फायदा हासिल किया जिसको इसने चैलेंज कर रखा है। इमरान खान चाहते हैं जिस कानून से फायदा वो हासिल कर चुके, इससे कोई और मुस्तफीद न हो। तारीख में पहली बार ये भी हुआ कि एक वज़ीर आज़म ने ओहदे से फारिग होने पर अपने तरमीम शुदा कानून को चैलेंज किया।
सदर मुमलिकत ने नैब तरमीम बगैर दस्तखत के वापस की और इनको पार्लियामेंट ने जॉइंट सेशन में दोबारा मंजूर किया। इमरान खान ने नैब कानून पहले ट्रायल कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया? चीफ जस्टिस ने कहा, आपने ये नुक्ता पहले भी बेहतरीन अंदाज में उठाया था कि दरखास्त ठोस बुनियादों पर मबनी नहीं। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सारी दुनिया में अदालतें कवानीन को कलअदम करार देती हैं। अगर आप तीसरी तरमीम से मुतासिर हैं तो मुतल्लिका फोरम से रुजू कर लें। अदालत का पार्लियामेंट को कानून साजी की हदायत देने का मकसद कानून को आसान बनाना था। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 23 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत भी 23 मई तक मुलतवी कर दी गई है। तफसील के लिए रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन में तौहीन कमीशन केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान 23 मई को जाती हैसियत में तलब। केस में फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। वकील की इस्तदा पर असद उमर के खिलाफ तौहीन कमीशन केस की समाअत भी मुलतवी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। बेंच के इस्तफसार पर वकील ने कहा कि इमरान खान ने आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी भी मुकदमात में मसरूफ हैं। मेंबर बलोचिस्तान ने कहा कि क्यों ना इमरान खान के काबिल जमानत वारंट जारी कर दें, जिस पर वकील का कहना था कि मैंने कमीशन को आगाह करना था। वकील ने कमीशन के 4 रुकनी बेंच को फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से मुतल्लिक आगाह किया। मेंबर सिंध ने कहा कि फवाद चौधरी गिरफ्तार हैं, इसलिए इनकी हद तक पेश न होना ठीक है। फवाद चौधरी के खिलाफ केस की मजीद कार्रवाई 23 मई तक मौखर कर दी गई। असद उमर के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील ने इल्तिवा लिया है। सिंध हाई कोर्ट में मामले की समाअत मुकम्मल होने दें। कमीशन ने असद उमर के खिलाफ केस की समाअत भी 23 मई तक मुलतवी कर दी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आरिफ वाला में महकमा ज़राअत की जानिब से ज़्यादा कपास उगाओ मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से मुख्तलिफ सेमिनार्स और किसानों के साथ मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है। आरिफ वाला में मजमूई तौर पर 13,500 एकड़ पर कपास की काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए किसानों ने भी कपास की ज़्यादा काश्त पर आमादगी का इजहार किया। माहिरीन का कहना है कि मुल्की मईशत की बहाली के लिए वसी रकबे पर कपास की काश्त ज़रूरी है।